Oh, thanks a lot. Thank you. Sorry, yeah, really sorry. The team was trying to resolve a teething issue because yesterday we got the comments कि color वगैरह अच्छा नहीं है. So we thought of recording the class in the next, not in the recording studio, but in the class. थोड़ा echo वैको का problem होगा. By day after tomorrow, I will be back in Delhi, तो आपको ये teething issues नहीं आएंगे, ठीक है? चलो, we'll start now. So most probably the PDF which you asked for, handout wala, so all that what we are going to discuss now into the handout format or PDF format you will get by tomorrow. So from tomorrow by 9 PM you will get a handout of 4 pages, जहाँ पे जो भी मैं विद न्यूज जो चल रहा है ना उस न्यूज को हम हटा देंगे. ये जो साइड न्यूज है उसको हटा के सिर्फ ये वाला कंपोनेंट और क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर एटसेट्रा वो आपको 4 पेजेस में दे देंगे. आपको सिर्फ उन्हीं 4 पेजेस का प्रिंट आउट निकालना है और उसको पढ़ना है साथ साथ में मेरे, ठीक है? तो स्टार्ट करता हूं. आई एम ऑलरेडी लेट बाय मोर देन 10 मिनट्स. रियली सॉरी फॉर दैट, फॉर द टेक इशू. सो फॉर टुडे, of course, as I told you yesterday that I'm going to cover these newspapers and keywords, case studies, key facts, president, vice president definition. It will be a daily series which will be live from 9:30 PM every day. So today what we are going to discuss is these keywords, these 4-5 keywords that we have: fiscal stimulus and the related fiscal concepts that we have. Then we are going to discuss one earth, one family, one future, greenwashing, social equalizer, hard to beat size advantage. And these are certain case studies. ये key facts याद करेंगे. ये PM साहब ने जो अग्निवीर पे बोला है. And finally the definitions. चल लेते हैं सीधा सीधा. So these are the keywords that we can use. For example, this news of Business Standard, which is having a keyword of fiscal stimulus. तो आपको fiscal, before I will explain you what fiscal stimulus is, it's a very common keyword. तो होता क्या है, जब एक इकोनॉमी रिसेशन में चल रही है तो उस रिसेशन की इकोनॉमी में सप्लाई बिकम्स मोर देन डिमांड. तो आपको डिमांड रिवाइव करनी पड़ती है. अब डिमांड कब रिवाइव होगी? जब आपके पास ज्यादा पैसा होगा. कब ज्यादा पैसा होगा? या तो आप खुद अर्न करोगे या गवर्नमेंट कुछ हेल्प कर देगा. तो फिस्कल स्टिमुलस इज ए कीवर्ड which talks about that the government is giving you a that the government is giving a fiscal input to you. fiscal मतलब फिस्क मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. अब अगर गवर्नमेंट के CFI से आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है उसको हम कहते हैं फिस्कल स्टिमुलस. जैसे कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे देगा या गवर्नमेंट टैक्स रेट कम कर देगा, बजट भी आने वाला है, वो सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे फिस्कल स्टिमुलस के. An attempt by the government to increase economic activity by reducing taxes and increasing government spending through investment or through subsidies, उसको हम कहते हैं fiscal stimulus. Now where all we can use it? It can be used in जहां पर भी employment बढ़ाना हो. जैसे employment increase करने के क्वेश्चन आए ना, जॉबलेसनेस ग्रोथ, इंडिया सीधा एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर चला गया क्या, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्या है, मनरेगा की प्रॉब्लम क्या है, सब्सिडीज बर्डन कितना है. उन सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हम बूस्टिंग एम्प्लॉयमेंट का एक कंपोनेंट रखेंगे. वो कब होगा? जब फिस्कल स्टिमुलस होगा. एजुकेशन में, हेल्थ में, एग्रीकल्चर स्पेंडिंग में, R&D में, वेलफेयर प्रोग्राम्स में, सारे वो इनिशिएटिव्स जहां पे फ्यूचर अच्छा है या इंडिया को फोकस करना चाहिए, उन सब में हम फिस्कल स्टिमुलस का कीवर्ड यूज करेंगे. आपको होमवर्क में क्या डालना है? फिस्कल रिलेटेड अदर कीवर्ड्स. जैसे कि लिखो फिस्कल मार्क्समैनशिप, then fiscal gap, then fiscal deficit that we know, fiscal consolidation. देखो आपको कल से मैं 9 PM पे वो PDF दे दूंगा जिसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है? आज के लिए सॉरी बच्चा लोग. Then next we have is fiscal consolidation and last we can have fiscal space. So this was the question which UPSC asked in 2021, that investment in infrastructure is essential for more rapid and inclusive economic growth. Discuss in light of India's experience. इसमें होमवर्क लिखो कि इन्वेस्टमेंट की वर्चुअस साइकिल वो क्या होती है. इन्वेस्टमेंट की वर्चुअस साइकिल क्या होती है, ठीक. नेक्स्ट वाला कीवर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग है. दिस कीवर्ड अगेन वी कैन यूज इट फॉर वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर. वो सारी प्रॉब्लम्स जो ग्लोबल पे इफेक्ट कर रही हैं वहां पे हम डाल सकते हैं वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट दैट वी हैव वन अर्थ, दैट वी नीड टू कंसिडर एज वन फैमिली,
because we have a one future. So where all we can use it, we can use it for fight against terrorism, उसका conclusion हो सकता है. We can use it for climate change. We can use it for disaster management. We can use it for global recession. We can also use it for judicial intervention. और international institutions जो है ना हमारे, उन सबको वन अर्थ कंसिडर करना पड़ेगा. मतलब दे कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बेसिस पे, सेम होना चाहिए. वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर फॉर दिस. प्लस वी कैन यूज इट फॉर पेंडेमिक, वी कैन यूज इट फॉर हेल्थ रिस्क. सो कॉमन लॉज बनने चाहिए हमारे, इसलिए हम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर यूज करेंगे. इसी ही आर्टिकल में एक और कीवर्ड है 3H. देखो हम एक कॉमन कंक्लूजन डाल सकते हैं, वी नीड टू बैलेंस बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, है यही. बट G20 में इंडिया ने पास्ट को बोल दिया हीलिंग. मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हुई होंगी हमारे, जिन प्रॉब्लम्स को हमें ठीक करना है. कोविड आया, हेल्थ इश्यूज आए तो हमें उसे इंप्रूव करना है. टेररिज्म है, सोशल इश्यूज हैं, सो उसको हमें हील करना है. रिजर्वेशन की वजह से डिस्क्रिमिनेशन है, तो पास्ट का हीलिंग हो गया. प्रेजेंट में हार्मनी चाहिए बिटवीन ऑल द स्टेक होल्डर्स, एंड फ्यूचर में हमें होप चाहिए कि वो ठीक होगा. कहां कहां यूज करेंगे हम उसको? दिस कैन बी यूज्ड फॉर इंडियाज लीडरशिप प्लस इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, टेररिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एटसेट्रा. ग्लोबल इश्यूज में अफगानिस्तान में हम यूज कर सकते हैं, रशिया यूक्रेन में यूज कर सकते हैं, या अपने डोमेस्टिक इशू जो मैं आपको बता रहा हूं वहां तो यूज हम कर ही सकते हैं. हीलिंग, हार्मनी एंड होप, 3H अप्रोच. अच्छा कीवर्ड है. कहां कहां यूज कर सकते थे? 2019 में क्वेश्चन है, इज डाइवर्सिटी एंड प्लुरलिज्म इन इंडिया अंडर द थ्रेट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. वहां डाल सकते हैं अपन, व्हाट introduces friction into the ties between India and United States is that Washington is still unable to find for India a position in its global strategy. So यहाँ पे in conclusion में use कर सकते हैं कि bilateral relations and all के cases में we should focus upon the 3H, healing, harmony and hope का component. तो वहाँ सब हम नागा वागा इशू में, recession में use कर सकते हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में यूज कर सकते हैं, अफगानिस्तान में हम यूज कर सकते हैं. इन सारे क्वेश्चंस में हम लोग वन वी कैन यूज. देन 3H अप्रोच के ये क्वेश्चंस आए हुए हैं. I2U2 का प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन आया था, फिर नक्सलिज्म का क्वेश्चन आया था, टेररिस्ट एक्टिविटीज का क्वेश्चन आया था. इन ऑल दीज क्वेश्चंस वी कैन यूज हार्मनी. वापस रीट्रेट इसीलिए कर रहा हूं बिकॉज बहुत अच्छा कीवर्ड है ये. एंड एज आई टोल्ड यू, वन कीवर्ड गिव्स अस ऑलमोस्ट 0.25 टू हाफ मार्क्स. नेक्स्ट फ्रॉम द सेम आर्टिकल, ये देखो इसीलिए सिग्निफिकेंस है कि पूरा कंसेप्ट ही क्यों लेके आया मैं आज का एनरिचमेंट सीरीज. बिकॉज एज एन एस्पिरेंट यू कैन नॉट कवर ऑल द न्यूज़पेपर्स, बट किसी दिन किसी तो न्यूज़पेपर में बहुत अच्छा आर्टिकल आता होगा ना यार. मतलब वो तो अगर हम उसको पढ़ लें तो कॉस्ट बेनिफिट में अच्छा मिल जाएगा, बट एज एन एस्पिरेंट यू कैन नॉट कवर इट. सो इसी वजह से इन जितने भी अच्छे आर्टिकल्स के कीवर्ड्स होंगे, एग्जाम्पल्स होंगे, केस स्टडीज होंगे, इसीलिए आई स्टार्टेड विद दिस इनिशिएटिव. बहुत कॉस्ट वाला फैक्टर है यार. 3 लोगों की मेरी टीम लगती है पूरे दिन, तब कहीं जाके काम बनता है, फिर मैं इसको रिव्यू करता हूं. तो इस द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीम एंड मी पुटिंग एन एफर्ट एवरी डे इज कि हम इससे कुछ यूज कर पाए, एग्जाम में फाइनल बेनिफिट हो पाए. बहुत सालों से व्हेन आई स्टार्टेड द IAS सब इन 2018, लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स सेड कि सर आपके पेड कोर्सेज हैं, बहुत महंगा है, दिस दैट, बड़े सारे प्रॉब्लम है. फाइनली मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहा हूं कि मैं कुछ फ्री इनिशिएटिव लेके आऊं, तो आपको उसको यूज करना पड़ेगा यार, है ना. अगर यूज नहीं करेंगे तो आपका भी लॉस है, मेरा भी मोटिवेशन खत्म हो जाएगा. जितना मैक्सिमम हम इन वीडियोस को देख पाएंगे, उस PDF का प्रिंट आउट निकाल पाएंगे, कंटेंट पढ़ पाएंगे, उतना ही वो जो मेरा एफर्ट्स है और जो आपका एफर्ट्स है उससे रिजल्ट आ पाएगा. वरना बंदर की कहानी तो तुमने सुनी है. वन हेल्थ अप्रोच वी हैव, सुना है कि नहीं सुना है? यूसेज, वन हेल्थ अप्रोच फोकसेस अपॉन बैलेंसिंग बिटवीन ह्यूमन हेल्थ एंड एनिमल हेल्थ. दोनों की हेल्थ को बैलेंस करना है, उसको वन हेल्थ अप्रोच कहते हैं. वी कैन यूज इट फॉर सब हेडिंग एज वेल एज कंक्लूजन, कि सिर्फ ह्यूमन की हेल्थ पे फोकस करोगे तो कोविड जैसी सिचुएशन होंगी, हेल्थ जैसी सिचुएशन इश्यूज आएंगे, प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जोशीमठ वाले में यूज कर सकते हैं हम उस वाले, बिकॉज वी नीड टू फोकस अपॉन वन हेल्थ, ह्यूमन ऑल्सो, एनिमल ऑल्सो, डिजास्टर ऑल्सो, क्लाइमेट ऑल्सो, सारा फोकस पर करेंगे. So there was a question, critically analyze the role of digitalization as a solution to India's challenge healthcare. इंडिया का हेल्थ केयर सिर्फ ह्यूमन हेल्थ पे फोकस करता है, तो डिजिटलाइजेशन से पूरा रेजोल्यूशन नहीं होगा.
we also need to focus upon the health of both flora and fauna. वहां यूज कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, आई गॉट सम सजेशंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स की सर आप सेशन के बीच में कमेंट्स मत देखना, अदरवाइज फ्लो ब्रेक हो जाता है. मुझे भी ठीक ही लगता है कि एक फ्लो में पढ़ते हैं, लास्ट में जाके ही मैं आपके कमेंट्स देखूंगा. आपको कुछ भी वो हो तो आप लाइव चैट देखूंगा. आपको कुछ भी इश्यू हो तो आप कमेंट्स में लिख देना. आई थिंक कल वाले वीडियो में भी मैंने जाके सारे कमेंट्स का रिप्लाई दिया है. आपको कभी भी कुछ भी इश्यू हुआ करेगा आप कमेंट सेक्शन में लिख देना. आई विल इंश्योर कि आज का एनरिचमेंट सीरीज में जो भी कमेंट्स आ रहे हैं मैं उन सबके पर्सनली रिप्लाई करूंगा. तो आप वहां लिखेंगे, मैं रिप्लाई कर दूंगा उसको. ठीक है. नेक्स्ट आता है अपना ग्रीन वॉशिंग. अब नॉमेनक्लेचर ही बता रहा है कि यार वो ग्रीन नहीं है, उसको वॉश कर दिया है. मतलब हमने एफर्ट्स ऐसे डाले हैं कि वो ग्रीन इनिशिएटिव लगे, बट वो ग्रीन वॉशिंग नहीं है. जैसे माइंड वॉशिंग, ब्रेन वॉशिंग होता है ना, वैसे ही ग्रीन वॉशिंग है. इट इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फॉल्स, मिसलीडिंग और अनट्रू एक्शन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन about the positive impact that a company products or services has on the environment. उसका एफर्ट है या नहीं है वो नहीं है, बट हाँ आप मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स डाल रहे हो विच वी कैन यूज फॉर क्लाइमेट टारगेट्स. ग्रीन वॉशिंग है. डेवलप्ड कंट्रीज कह रहा है कर रहा है, बट कर नहीं रहा है. डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन, क्लाइमेट डिनायल मोड, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सब में हम ग्रीन वॉशिंग एज ए कंसेप्ट यूज कर सकते हैं. कहाँ यूज करोगे? कैरिंग कैपेसिटी का क्वेश्चन आया था 2019 में कि यार इतना सब कोई क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है और फिर भी जो अर्थ शूट डे है वो डिक्रीज होता चला जा रहा है. अब अगस्त में आ गया, फिर जुलाई में आ जाएगा. मतलब टोटल 1 ईयर में हम कितना यूसेज कर रहे हैं उसको मेजर करते हैं हम अर्थ शूट डे से. आप होमवर्क में लिख लेना. तो जो कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ती चली जा रही है. मतलब अर्थ सस्टेन नहीं कर सकती है, उतना प्रेशर हम उस पर डाल रहे हैं. और जो हमारे एफर्ट्स हैं वो दे आर नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट. इसीलिए हम ग्रीन वॉशिंग एज अ कीवर्ड विच वी कैन यूज देयर. फ्यूल, रिन्यूएबल एनर्जी एंड ऑल में भी हम यूज कर सकते हैं ग्रीन वॉशिंग, बिकॉज द सब्सिडीज विच वी आर गिविंग टू रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन आर नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, बट दे आर बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर फॉसिल फ्यूल्स ओनली. आई थिंक लास्ट कीवर्ड है सोशल इक्वलाइजर. सोशल क्लीवेजेस होते हैं, सोशल चैलेंजेस होते हैं बहुत सारे, कास्ट बेस्ड, जेंडर बेस्ड, जो भी हमारा वो कंपोनेंट्स हैं, क्लीवेजेस हैं जो हमारे ऑक्यूपेशन बेस्ड, क्लास बेस्ड, उसको इक्वलाइज कैसे करें हम. उसके वेरियस तरीके हैं जहां से हम सोशल इक्वलाइजर बना देंगे. तो जैसे समथिंग दैट मेक्स पीपल मोर इक्वल, हैव एंड हैव नोट्स की गैप को हम ब्रिज कर रहे हैं. इट कैन बी यूज्ड इन द फॉलोइंग टॉपिक्स. विच ऑल टॉपिक्स? It can be used in digital financial inclusion, जिसका ये आर्टिकल था. That the Union Cabinet decisions has 2,600 crore for providing banks with an incentive to promote digital payments only. अब आपने देखा होगा ना, हर कोई बच्चा या हर कोई जाके यूपीआई कर रहा है. मतलब इंस्टेंट ट्रांजैक्शन जा रहा है यार. You are empowering the lowest strata of the society to take their own decisions by doing that payment instantly. Otherwise कैश से करता था या मिलता नहीं था. So फाइनेंशियल इंक्लूजन और ई पे और ई वॉलेट इज अ सोशल इक्वलाइजर. एजुकेशन, स्किल सेट, रिजर्वेशन, फंडामेंटल राइट्स, इक्वल एक्सेस टू जस्टिस, ऑल ऑफ देम आर सोशल इक्वलाइजर. तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना. प्राइमरी हेल्थ केयर एंड ऑल ऑफ देम आर सोशल इक्वलाइजर. कहाँ कहाँ यूज कर सकते थे हम प्रीवियस ईयर में? कल मैंने आपको बताया था ना दैट यू हैव टू डू प्रीवियस ईयर आंसर राइटिंग. प्रीवियस ईयर के जो भी आपने आंसर्स लिखे हैं, मेरे को कुछ एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर ये आप जो पढ़ा रहे हो इस एक्सरसाइज को हम कैसे करें, बिकॉज हम तो प्रीलिम्स मोड में पहुंच गए हैं. एज आई टोल्ड यू, आपको मुझे दिन का 1 घंटा देना है यार बस. कहीं तो ट्रस्ट मी दैट यू विल नॉट रिग्रेट दिस 1 hour एक्सरसाइज आफ्टर मे बी 3 months, 4 months और 5 months. When I still got messages from lot of my selected students and all की जो आंसर राइटिंग वाला पार्ट है. The only thing which I know is आंसर राइटिंग. वो मुझे पता है कि आंसर राइटिंग कैसे कराना है. अगर आप 1-1 घंटा बस मुझे दे पाओगे ना, तो आफ्टर प्रीलिम्स व्हेन यू हैव टू एनकाउंटर मेंस यू विल बी इन अ मच बेटर सिचुएशन. तो मुझे पता है थ्रू आउट द डे यू आर फोकसिंग अपॉन द प्रीलिम्स कंपोनेंट, बट दिन का 1 घंटा तो अभी आपको मुझे देना ही पड़ेगा व्हेन वी विल फोकस अपॉन द मेंस वाला कंपोनेंट. तो बस सिर्फ 9:30 to 10:30, 9:30 to 10 क्लास करेंगे, 10 to 10:30 आप रिवाइज करोगे, उसको जहां यूज करना है वो कर लो. आपके माइंड को भी एक पीस रहेगा ना यार कि मैं पूरा दिन प्री पढ़ रहा हूं बट मैं मेंस को स्किप नहीं कर रहा हूं. सो 1 घंटा आपको मिनिमम ये देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो
बनता चला जाएगा ना यार, फिर प्री और मेंस के बीच में कैसे करोगे? सो दिस, जो आपने मेंस के आंसर लिखे हैं या नहीं लिखना है, दिन में एक आंसर लिख लो ना यार, कौन सा बड़ा प्रॉब्लम है कि एक आंसर पर डे हम नहीं लिख सकते हैं। जो आपने आंसर्स लिखे हैं उसमें ट्राई टू इनकॉर्पोरेट द सोशल इक्वलाइजर, वट एवर आंसर राइटिंग दैट यू हैव डन। इतने सारे स्टेट पीसीएस के मेंस आने वाले हैं, हिमाचल का आने वाला है, यूपी का आने वाला है, हरियाणा का आज मेंस का रिजल्ट आया, अगला नोटिफिकेशन आने वाला है, पंजाब का नया आने वाला है, बिहार का आने वाला है। पढ़ोगे ना मेंस के लिए यार, कभी तो कभी यहां से पढ़ लेते हैं। Then next we have is last keyword, that is hard to beat the size advantage, कि इतना बड़ा साइज हो जाए that you are too big to fail। वो कभी कभी क्लासेस में मैं बताता हूँ ना, that in India's freedom struggle you can love Gandhi, you can hate Gandhi, but you cannot ignore Gandhi, because the stature of Gandhi ji was so big that you cannot ignore his positive or negative during the freedom struggle. So similarly, you can focus upon climate change. You may ignore you may affect the climate change in a negative way or a positive way, but you cannot ignore the climate change. Same can be used across various same keywords. Terrorism पे लिख सकते हैं अपन, ecosystem पे लिख सकते हैं, economic disasters पे लिख सकते हैं. So similarly, hard to beat size advantage means economies of scale इतना बड़ा हो गया कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो. So कहाँ यूज कर सकते हैं हम इसको? मीनिंग डेमोन्स्ट्रेटिंग द बेनिफिट ऑफ बीइंग बिगर इन साइज. अगर इंडिया 5th बिगेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में, तो यू कैन नॉट इग्नोर दैट पार्ट ना. So it can be used for economies of scale, showcasing India's population advantage. You can also use it for pharma industry, solar potential, the number of startups that we have, the number of billionaires that we have, the type of pharma का export जो हम करते हैं, तो वहां पे हम सब यूज कर सकते हैं hard to beat the size advantage. नेक्स्ट अपना आता है वेरियस केस स्टडीज जो हमारे चल रहे हैं. तो अंडर द वेरियस केस स्टडीज, फर्स्ट केस स्टडी आता है. देखो ये न्यूज तो ठीक है, अडानी साहब इज इन्वेस्टिंग. इसमें बस मैंने आपके रिवीजन के लिए पंचामृत के टारगेट्स डाल दिए हैं, बिकॉज प्री आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा प्री भी पढ़ लेते हैं. ये आर्टिकल में नहीं है, आई जस्ट एडेड इन वैल्यू एडिशन. एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, मैं थोड़े थोड़े परमुटेशन कॉम्बिनेशन करूंगा इस कोर्स में. नया कोर्स है, मुझे भी वो कोर्स बनाना है जो मेरे मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट कर पाए. सो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन किया है, उन टॉपिक्स में करेंगे जो मुझे लगता है प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस पूरे आज का क्वालिटी एनरिचमेंट में से 0% प्री में आए, नहीं. आई विल ट्राई टू बैलेंस इट आउट कि हम 70% मेंस और 30% कुछ प्री का कंपोनेंट भी मैं इसमें ऐड करूंगा. तो प्राइवेट पार्टनरशिप और हाउ प्राइवेट एंड public both can contribute into eradicating or decreasing the effect of the climate change. So COP21 में अपन ने किया था ना 2.5 to 3 बिलियन बनाएंगे कार्बन सिंक, उसी में 100 मिलियन ट्रीज बाई 2030 अडानी साहब लगाएंगे. और पंचामृत के 5 टारगेट कौन कौन से हैं? 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल, then 50% of its energy requirement from renewable sources, then reduction of total projected carbon emission by 1 billion, then carbon intensity को डिक्रीज करेंगे 45%, प्रेजेंट अपना 33-35% चल रहा है, and India will become net zero emission by 2070. नेक्स्ट अपना केस स्टडी एंड ऑल आता है, दैट इज वुमेन क्रिकेट. तो जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं ना कि स्पोर्ट्स में वुमेन कंट्रीब्यूशन नहीं है एटसेट्रा एंड ऑल, उसमें अपन यूज कर सकते हैं दैट इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में अभी वुमेन का भी होगा इन टर्म्स ऑफ द क्रिकेट. सो जो है ना, व्हाट आर द कंटिन्यूड चैलेंजेस फॉर वुमेन इंडिया अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस, उसमें फ्यूचर में लिख सकते हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में लिख सकते हैं, प्राइवेट इनिशिएटिव्स में लिख सकते हैं. देयर वी कैन यूज इट कि जो रॉ टैलेंट है जो रूरल एरियाज में मिल रहा है, हिंटरलैंड में मिल रहा है, टीयर 2 टीयर 3 में मिल रहा है, एंड टू एम्पावर देम द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड और वी हैव स्टार्टेड इंडियन प्रीमियर लीग 2023. जो आप पॉइंट लिखते हो, आई विल टेक वन एक्स्ट्रा क्लास कि कैसे टॉपर्स ने कीवर्ड्स को यूज किया है. वो ऐसा नहीं होगा कि वो सारे टॉपर्स मेरे से ही कनेक्टेड होंगे, ठीक है. मैं पहले ही बता देता हूँ दैट द टोटल आंसर राइटिंग स्टाइल विच आई लाइक, तो उस टोटल में उस बच्चे ने कैसे फैक्ट यूज किए हैं, कैसे एग्जाम्पल्स यूज किए हैं, कैसे उसने कीवर्ड्स यूज किए हैं, उसका एक सेशन बनाऊंगा मैं, ठीक है. हाफ एन आवर का बनाएंगे, इसी में ही किसी दिन कर लेंगे, संडे को कर लेंगे या किसी और दिन, जहां पे कैसे आपको पता चलेगा कि ये जो हम पढ़ रहे हैं उसको यूज कैसे करें. मतलब नॉर्मल स्टेटमेंट की जगह में कीवर्ड बेस्ड स्टेटमेंट कैसे लिख सकता हूं, ठीक है. नेक्स्ट केस स्टडी में चलते हैं, लास्ट है आई थिंक सो, इंडो जापान रिलेशनशिप में दैट वीर गार्जियन 2023.
that is the first joint drills in an area outside of Tokyo as both countries set up military exercises and all this thing. तो bilateral relationship में India's diplomacy and all में अपन इसको use कर सकते हैं वीर गार्जियन. Again, this can also be asked in prelims. कि वीर गार्जियन is a term related to what? Next is a very interesting case study. इंडिया को अपना पॉपुलेशन इंक्रीज, आज न्यूज आया था ना कि इंडिया का पॉपुलेशन हैज बिकम मोर देन चाइना का पॉपुलेशन और निकल से हो जाएगा समथिंग लाइक दैट. तो नाउ इंडिया इज फेसिंग ड्यूअल चैलेंज. जहां पे मेजॉरिटी ऑफ इंडिया वांट्स टू डिक्रीज इट्स पॉपुलेशन एंड फर्टिलिटी रेशियो, वहीं पे सिक्किम के एफर्ट्स हैं टू इंक्रीज इट बिकॉज इट्स पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग. सिमिलरली द सदर्न स्टेट्स दे हैव अचीव्ड द टोटल फर्टिलिटी रेशियो ऑफ 2.1 और नॉर्दर्न स्टेट्स में अभी भी 3.5 है. तो नॉर्दर्न स्टेट्स पॉपुलेशन के इंक्रीज के ग्रोथ रेट को कम कर रहे हैं, सदर्न स्टेट्स पॉपुलेशन के इंक्रीज के ग्रोथ रेट को उतना ही रख रहे हैं और सिक्किम उसको बढ़ाना चाह रहा है. which this can be used for various diversity in India. How one size fit all cannot be applicable in India. How the centralization of schemes cannot be there. Why the bottoms up approach is required. वहां सब हम use कर पाएंगे इसको. That by incentivizing childbirth to combat declining fertility rates in India's least populous state, proposing a scheme, a special increment to women employees, giving birth to a second. अपन तो ये यूरोपियन यूनियन की प्रॉब्लम समझ रहे थे ना. Within India there is a state which is incentivizing the woman to give birth to the second baby. Usage in population related questions and all, we can use it. नेक्स्ट लास्ट अपना आता है दैट इज लाइव स्ट्रीमिंग इन सुप्रीम कोर्ट. तो पहले क्या होता था कि सिर्फ स्पेसिफिक और स्पेशल और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के केसेस थे, उसमें लाइव स्ट्रीमिंग होता था. अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सब में ही कर देंगे. तो जुडिशरी में नॉन ट्रांसपेरेंसी है, जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव है. डिजिटलाइजेशन से कैसे जुडिशरी एंड ऑल का ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगा, जुडिशरी ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं जहां पे उन्होंने डिजिटल पेनिट्रेशन को इंक्रीज किया है. यहाँ पे हम सारे जो केसेस हैं here all we can use this particular thing. ठीक है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं into where you say judicial reforms, access to judiciary, transparency etc and all में. लास्ट आता है मार्ग पोर्टल. बहुत अच्छी केस स्टडी है, इसको याद कर लेना. दैट मार्ग पोर्टल स्टैंड्स फॉर मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस एंड ग्रोथ. अब ये सब किसको चाहिए भाई? अब ये पोर्टल तो बना है स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए, लेकिन अगर इस पोर्टल को आप भूल जाओ और कोई भी लोअर स्ट्रेटा का है, वहां पे अपन यूज कर सकते हैं ना दैट मार्ग. एक्रोनिम बताता हूं ना मैं कंक्लूजन में, जो मैं बताता हूं क्यूपी वाले पार्ट में. तो मार्ग, वी यूज मार्ग फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, वी यूज मार्ग फॉर कॉलेज गोइंग किड्स और स्किल इंप्रूवमेंट एंड ऑल वाले पार्ट में. वी नीड मार्ग फॉर, यहां तो लिखा ही है उन्होंने, वी नीड मार्ग फॉर स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स. तो ये तो गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बना दिया या एक प्लेटफॉर्म बना दिया, बट सेम कीवर्ड और सेम एक्रोनिम को हम तो अपने हिसाब से यूज करेंगे ना. वी विल नॉट नेम इट एज मार्ग प्लेटफॉर्म शुड बी देयर, बट विल से दिस कैन बी रिजॉल्व और फ्यूचर और डबलिंग फार्मर्स इनकम में मार्ग इज रिक्वायर्ड बिकॉज एग्रीप्रेन्योर्स, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स will become if we have mark. So this platform is envisioned to facilitate mentorship between startups and entrepreneurs. The portal will allow for live matchmaking of mentors with startups, helping startups to access the guidance that will help them grow and increase their impact. Key facts पे आ जाते हैं. Ethanol production and all. Again, as I told you, कुछ extra info team देती है, मैं जानबूझ के रखता हूँ so that you know किसको remove करना है. ये अच्छा है. देखो, शुगर केन से हम इथेनॉल बनाते हैं. अब उसका पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है. पॉजिटिव इंडिया के केस में ऐसा है बिकॉज द शुगर केन और इथेनॉल प्रोडक्शन से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट डिक्रीज होगा, थोड़ा क्लाइमेट डिक्रीज होगा, इंप्रूव होगा, डीजल डिपेंडेंसी कम होगा एटसेट्रा, प्लस डबलिंग फार्मर्स इनकम होगा, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन बनेगा. बट प्रॉब्लम क्या है यार, ये कंसंट्रेटेड है. यूपी और महाराष्ट्र, दीज टू स्टेट्स कंट्रीब्यूट 60% ऑफ द शुगर केन एंड शुगर आउटपुट. तो मतलब कंसंट्रेटेड हो गया सिर्फ 2 स्टेट्स में. इथेनॉल प्रोडक्शन में यूपी टॉप पे आता है. सो ये अपन स्टडीज में डाल सकते हैं, फैक्ट्स में डाल सकते हैं. यूपी इज इंटीग्रेटिंग शुगर केन विद द इथेनॉल, सो दैट आल्सो हेल्प्स देम टू इंसुलेट. देखो, इथेनॉल प्रोडक्शन में प्रॉब्लम क्या है कि जो इनपुट है ना वो कंसिस्टेंट नहीं है और जो आउटपुट है उसका रिक्वायरमेंट भी कंसिस्टेंट नहीं है. सो इफ यू विल इंटीग्रेट इनपुट एंड आउटपुट, दैट इज शुगर केन फार्मर्स एंड इथेनॉल प्रोडक्शन की इंडस्ट्रीज,
So insulating the sector from the cyclical nature of the sugar market. नेक्स्ट चलते हैं अपन की फैक्ट्स में, दैट इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू वाइल्ड फायर्स. क्लाइमेट चेंज के हर क्वेश्चन में डाल सकते हैं. इट्स वेरी वेरी, जैसे एग्रीकल्चर का वेस्ट डालते हो ना 90,000 करोड़ बाय एफएओ एवरी ईयर इन इंडिया, वैसे ही वाइल्ड फायर्स का अपन लॉस बना सकते हैं, दैट देयर इज एन एनुअल लॉस ऑफ $50 बिलियन. तो सोर्स डाल देना बस, नासा फायर इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर्म्स करके बनाया जो 60 सेकेंड्स में बता देगा आपको इंफॉर्मेशन. एंड डिलॉयट हैज आल्सो जॉइंड द फायर एएलडी इनिशिएटिव. सो ये कुछ कुछ केस स्टडीज या फैक्ट्स हैं जो आप यूज कर सकते हो. फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं यार. इंडिया इज सो मच डिपेंडेंट अपॉन चाइना, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ई व्हीकल्स बट फार्मा का भी एपीआई अपन वहीं से लेके आ रहे हैं. ई व्हीकल्स हम बना रहे हैं, पोटेंशियल देख रहे हैं 2030 में सारा ई व्हीकल्स बनाना है, बट प्रॉब्लम क्या है, रॉ मटेरियल और इनपुट के लिए अपन डिपेंडेंट हैं. सो इनपुट इज डिपेंडेंट अपॉन आवर रिलेशन और इकोनॉमिक रिलेशन विद चाइना. China controls 85% of the global raw material capacity and dominates the midstream refining of Q materials and all. So अगर हमें बैटरी यूसेज करना है या एनर्जी स्टोरेज सिस्टम करना है, उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो अपन अभी भी चाइना पे डिपेंडेंट हैं. तो वहां हम यूज इसको कर सकते हैं. देन आई थिंक नेक्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू इंपोर्ट फ्रॉम रशिया. So that is how international relations में relation change हो जाता है in 7 years. You know, 2014 में, I think 2014 ही है शायद, है ना? हाँ, 2014 में इंडिया का जो इंडिया रशिया रिलेशन था वो टॉप 20 में था, और आज रशिया का रिलेशन हमारे साथ इतना इंप्रूव हुआ है दैट 4th लार्जेस्ट कंट्री हो गया है जहां से हम इंपोर्ट करते हैं. That is how international scenario changes. तो अपन क्वेश्चन देखते हैं ना, इन इंटरनेशनल रिलेशंस देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, नो परमानेंट फ्रेंड्स, बट परमानेंट इंटरेस्ट. वहां में अपन यूज कर सकते हैं इसको. इंपोर्ट फ्रॉम रशिया हैव जंप्ड 5 times to $33 बिलियन इन अप्रैल टू दिसंबर एंड ऑल. तो वहां पे अपन इसको यूज कर लेंगे. 20th प्लेस ड्यू टू सर्ज इन द क्रूड इनफ्लो. नेक्स्ट क्या है, इनोवेशन इंडेक्स लास्ट है. तो अपन बोलते हैं ना इंडिया का इनोवेशन या आरएनडी में एक्सपेंडिचर 0.7 है, उसको इंक्रीज कैसे करेंगे. सो इंडिया जंप्ड फ्रॉम 81st टू 40th पोजीशन इन 2022. तो क्वेश्चन तो मतलब बनेगा ना मेंस के में कि इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए, क्या करना चाहिए, इनोवेशन कैसे. हम 50 हाफ हो गए हैं यार. तो इन इफ दिस हैज बीन डन नाउ, उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए कुछ फैक्ट चाहिए होगा, और आत्मनिर्भर भारत के लिए कुछ फैक्ट चाहिए होगा. देखो जब मोदी जी आए थे इन 2014, 90% ऑफ ऑल मोबाइल फोन्स वर इंपोर्टेड एंड इंडिया हैज एक्सपोर्टेड 0 इलेक्ट्रॉनिक्स. एक्सपोर्ट 0 कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स, 90% फोन इंपोर्ट कर रहे थे. और अभी 7 साल में क्या हुआ है ना, यू कैन लाइक मोदी जी, यू कैन हेट मोदी जी, बट यू कैन नॉट इग्नोर मोदी जी. 2022 8 years में 97% ऑफ द मोबाइल फोन कंज्यूमर इन इंडिया आर इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड. सो दैट इज व्हाट द initiatives taken by the government also can be used for Atmanirbhar Bharat, Make in India, etc. and all. ठीक है. नेक्स्ट पीएम ऑन अग्निवीर स्कीम है. अब अग्निवीर स्कीम में अग्निवीर को छोड़ देना, बाकी सब में कहां कहां हम उसको यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं. देखो पीछे है, कैन बी यूज्ड इन मॉडर्नाइजिंग और ट्रांसफॉर्मिंग सेक्टर्स व्हिच रिक्वायर अटेंशन. एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, स्टार्टअप में यूज कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, जुडिशरी में, एंटरप्रेन्योरशिप में, कहीं भी यूज. कैसे क्या यूज करोगे, दैट न्यू इंडिया is filled with renewed vigor and efforts are underway to modernize dash as well as make them Atmanirbhar. So new India is filled with renewed vigor and efforts are underway to modernize agriculture or modernize startup or modernize MSME or modernize manufacturing or modernize the way of development as well as mark them Atmanirbhar Bharat. This can be used for कंक्लूजन पर्पसेस, बॉडी कंपोनेंट्स एटसेट्रा एंड ऑल वाले पार्ट में अपन यूज करेंगे. लास्ट है डेफिनेशंस. अच्छी हैं दोनों, बोथ डेफिनेशंस आर गुड. नाउ इकोसिस्टम सर्विसेज. सो इकोसिस्टम सर्विसेज का क्वेश्चन आ सकता है. डेफिनेशन अच्छा है. दे आर डिफाइंड एज द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशंस ऑफ इकोसिस्टम टू ह्यूमन वेलबीइंग एंड हैव एन इंपैक्ट अपॉन ह्यूमन सर्वाइवल एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ. गुड इंट्रोडक्शन. देयर आर 4 टाइप्स. अब मैंने आपको बताया ना कि आफ्टर इंट्रोडक्शन in 5 or 6 questions you have to draw micro diagram before starting the body.
तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसको एक माइक्रो डायग्राम बना लेना आप। सो माइक्रो डायग्राम में क्या करोगे आप, यू कैन हैव फॉर एग्जांपल दिस इज योर आंसर कॉपी, ठीक है, ये रेड तो दिख रहा है, ठीक है। नाउ वट एवर द इंट्रोडक्शन दैट यू हैव रिटन, उसके बाद बनाओ एक माइक्रो डायग्राम, 4 कंपोनेंट्स ऑफ दिस, और उसको अपन यूज कर लेंगे, ठीक है। प्रोविजनरिंग इकोसिस्टम सर्विसेज, रेगुलेटिंग एंड कल्चरल एंड सपोर्टिंग। लास्ट वी हैव इज ग्रीन बॉन्ड्स। ग्रीन बॉन्ड न्यूज में है, ग्रीन जॉब्स न्यूज में है, सो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, they are a debt instrument issued by public or private entities to finance eco-friendly or green projects is there. A very simple definition can be there, and the framework of green bond was issued by the government in November 2022. ये किसको कहोगे ग्रीन बॉन्ड? ऐसा ही नहीं है ना कुछ भी स्टार्ट कर लो और इसी को अपन ग्रीन बॉन्ड कहते चले जाएंगे। Where we can use it? We can use it for green growth, we can use it for sustainable development, we can use it for infrastructure funding, we can use it for green financing, ग्रीन ग्रोथ एटसेट्रा एंड ऑल में यूज करेंगे। तो ये ब्रॉडली हो गया, एंड ये अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं दैट वी हैव डिस्कस्ड दीज 5 कीवर्ड्स, फिस्कल स्टिमुलस, फिस्कल मार्क्समैनशिप, फिस्कल स्पेस, फिस्कल डेफिसिट, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इट कैन बी यूज्ड फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज एटसेट्रा एंड ऑल। वन हेल्थ अप्रोच दैट वी डिस्कस, ग्रीन वॉशिंग डिस्कस, सोशल इक्वलाइजर डिस्कस, हार्ड टू बीट साइज एडवांटेज। एग्जाम्पल्स अपन ने देखा था, अडानी साहब का क्या है, वुमेन इन क्रिकेट नया लीग स्टार्ट हुआ है, इंडो जापान रिलेशंस, डिक्लाइनिंग बर्थ रेट इन सिक्किम इन द वेरियस इनिशिएटिव्स टेकन बाय द सिक्किम स्टेट गवर्नमेंट फॉर सेकंड किड, एंड मार्ग प्लेटफॉर्म दैट वी कैन यूज। प्लेटफॉर्म यूज करना है तो एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स के लिए, एक्रोनिम यूज करना है तो एग्रीकल्चर एंड ऑल के लिए यूज कर सकते हो। फिर इथेनॉल प्रोडक्शन इन इंडिया, वाइल्ड फायर्स एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड यूज ऑफ एआई इन वाइल्ड फायर, तो वो अपन यूज कर सकते हैं केस स्टडीज में। Today I was discussing with a friend of mine. He served India in army, still serving in India. He was in UN mission also, and he was just sharing. I'm in Chandigarh, so I met few of my friends. He was just sharing his perseverance power. He served India in Arunachal Pradesh when he was a major. तो क्या होता है ना कि आर्मी के अंदर जो ऑफिसर्स हैं इंडिया में वो बहुत कम है, और जो जवान हैं वो बहुत ज्यादा हैं। ऐसा क्या है एक आर्मी ऑफिसर या जवान में, जो अभी तो है यार, ऐसा क्या है कि वो अपनी लाइफ देने को तैयार है? उसकी भी तो फैमिली है, उसके भी 2 बच्चे हैं जिसकी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। तो व्हेन ही वाज डूइंग अ पेट्रोलिंग इन अरुणाचल प्रदेश, ही वाज हार्डली 30 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर टू चाइना। तो हुआ क्या कि अचानक से फ्लैश फ्लड आ गया, एंड दे लॉस्ट ऑल, जो भी खाने पीने का सामान था उसके पास सब कुछ चला गया, एंड ऑल जितना भी था। और उनको जब ये लोग यहाँ जाते हैं, गश्त में जाते हैं, तो उनको एक सैटेलाइट का फ़ोन मिलता है। अब सैटेलाइट फ़ोन का प्रॉब्लम ये है कि अगर क्लाउड है तो आपको वो सैटेलाइट सिग्नल मिलेंगे नहीं। सो चारों तरफ फ्लड है, कुछ नहीं है, 5 असम राइफल्स के लोग हैं, 7-8 उसकी टीम के हैं पैरामिलिट्री वाले, और ये टोटल मिला के कुछ 13-14 लोग हैं, सब फ्लडेड हैं अक्रॉस, जहां तक देख रहे हो वहां तक पानी है, और आप बीच में बैठे, आपके पास सोल्यूशन नहीं है, आप एस्केप नहीं कर पा रहे हो उसको। और जो फोन है ना, वो उस फोन, अब सिग्नल नहीं आ रहा है, दे ट्राइड फाइंड आउट कुछ मिल जाए एंड ऑल दिस थिंग, तब तक डिस्चार्ज हो गया। 10 मिनट की उसकी लाइफ होती है बस। तो हुआ क्या कि उसके लिए ना उसको एक रिचार्जेबल बैटरी देते हैं। तो रिचार्ज बैटरी के लिए आपको ऐसे घुमाना पड़ता है, जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तब वो रिचार्ज होता है। 8 घंटे जब आप उसको घुमाते हो तो 10 मिनट के लिए वो फोन रिचार्ज होता है। और उन्होंने वो फर्स्ट डे किया, दे फेल्ड, सेकेंड डे किया, दे फेल्ड, 48 आवर्स तक दे वर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। 48 आवर्स के बाद में जो असम राइफल्स के लोग थे, दे सेड सर कब तो कुछ खाना पड़ेगा। तो वो गए, कुछ लेके आए एंड ऑल। तो ना वो जो लेके आए वो रैट्स लेके आए खाने के लिए। सो वो गए रैट्स, अब रैट्स का क्या होता है, जब फ्लड आ जाता है तो दे स्टार्टेड फ्लोटिंग, तो लेके आए और दे कंज्यूम्ड दैट। तो जब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आता है ना तो बहुत कुछ करना पड़ता है। सो लेट्स नॉट एज एन एस्पिरेंट, लेट्स नॉट एंटर इनटू दैट एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वाला फेज। वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है 6th अटेम्प्ट, 5th अटेम्प्ट, मे बी 4th अटेम्प्ट फॉर समबडी, मे बी 8th अटेम्प्ट और 9th अटेम्प्ट फॉर समबडी। तो हम उस फेज से बच सकते हैं अभी, अगर हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालें तो आई थिंक यू कैन सेव योर सेल्फ फ्रॉम एक्चुअली फीलिंग दैट पेन। तो उस फोकस में नहीं करते हैं यार, थोड़े एफर्ट्स डालने हैं। मुझे पता है कि देयर आर 50 रीजंस नॉट टू स्टडी, बट यू नीड ओनली 1 or 2 रीजंस टू स्टडी। थोड़ा एफर्ट्स डालते हैं, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे। 20-30% आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा।
जो आपने लास्ट मंथ पढ़ा था उससे फास्ट आज पढ़ना पड़ेगा, जो हम आज पढ़ रहे हो मे बी उससे 2x कल पढ़ना पड़ेगा, मे बी उसके आगे कुछ और पढ़ना पड़ेगा। कुछ बहुत सारे बच्चों का, मेरा हरियाणा का मेंस पास हुआ है, उनका इंटरव्यू है, बहुत सारी चीजें हैं यार। अगर आप पढ़ने को लगोगे तो आपको भी लगता होगा कि पूरी 4 महीने दूर है, ऐसा निकल जाता है टाइम। मतलब अगर आप सोचने लगोगे ना कि बहुत टाइम में, नहीं होगा। देखो 4 महीने, 2 महीने में पहला रिवीजन, तीसरे महीने में सेकंड रिवीजन और लास्ट में एक रिवीजन, इतना तो करना ही पड़ेगा ना। और 1 महीने के रिवीजन में आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उन 7 बुक्स की आपने 3-3, 2-2 किताबें पढ़ी हैं, मतलब आपको 2 दिन में एक किताब फिनिश करनी है। तो टाइम तो नहीं है अपने पास, फ्री हो जाएगा। और मेंस का नहीं पढ़ा है तो उसका भी लॉस है। तो मेरा रिक्वेस्ट और सजेशन सेम ही है कि आप ये 1 घंटा एक्स्ट्रा दो। अगर आप 8 घंटे सो रहे हो तो 7 घंटे सो लेंगे यार, 7 सो रहे हो तो 6 घंटे सो लेंगे, 6 है तो 5 घंटे सो लेंगे ना, क्या ही प्रॉब्लम है उसमें। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं ना, यू हैव टू स्ट्रेच योर सेल्फ। मतलब यू ऑल्सो नो ना कि इतना इतना सिंपली तो आईएएस नहीं बन पाएंगे हम, थोड़े तो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रेच करो अपने आप को, माइंड को, स्पेस को, फिजिकली अपने आप को, और थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालो जो जिससे अपन ये पेपर पास कर पाएंगे। नॉर्मल सिनेरियोज में पेपर पास नहीं होगा। थोड़ा एफर्ट्स डालते हैं, थोड़ा आप डालो, कुछ आपसे हम सीखेंगे। एवरी टाइम आई से दैट आई लर्न फ्रॉम माय स्टूडेंट्स। इसको इंप्रूव कर दूंगा, मेरी तरफ से जो इंप्रूवमेंट होगा आप कमेंट्स में डाल देना, मैं यहाँ से इंप्रूव करता हूँ। कोशिश करूंगा मेरे आसपास के दोस्तों से कुछ कुछ जो स्टोरी मिलेंगी, कुछ जो मुझे अच्छी मिलेंगी वो करेंगे, आपके साथ शेयर करते रहेंगे बीच बीच वाले पार्ट में। चलो ठीक है, एफर्ट्स डालते हैं, फिर कल मिलते हैं। आपको पीडीएफ एडवांस में मिल जाएगा कल, और कल पढ़ते हैं फिर कल का, है ना। ठीक है, थैंक्स बच्चा लोग।